Hello, my dear students. Today in this video, I am going to describe you the concept of variables in Python. So before starting the program or before starting the statements, I would like to give you a brief intro about what actually a variable is. So in Python, a variable represents a named location that refers to a value, and those values can be used and processed during the program when we are going to run our program. So the values of those variables can be changed. Python variables are created by assigning values to a desired type. Suppose if I want to assign an integer value to a variable integer type, then we have to give a value of integer type. If I want to initialize a variable with the value string type, so we have to give the value with string. So in this program, I have written a small program in which I'm describing about the concept of variables. So in this program, I have taken a variable a, I have assigned it value 20. I have taken a variable b, I have assigned it with a value 20. So a and b are variables here. 10, 20 are the values. If we want, we can change the values of variables. It will keep on changing. But whenever you are naming a variable, जब आप किसी variable को name दे रहे हैं, तो actually variables are identifiers. Variables actually हमारे programs में क्या होता है? These are identifiers. इसको हम अपने according अपने purpose से define करते हैं. It means हमारा variables का जो भी नाम आप दोगे, it will completely follow the concept of naming convention of identifiers, that there are certain rules कि आप variable का क्या नाम दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो. It is already described in the concept of rules of identifiers. Like first letter must not be a digit. So we cannot write A1. We cannot write 1A, but we can write A1. But we cannot write 1A because variables cannot start, identifiers cannot have the first letter as a digit, no blank space required, no special symbols we can use for naming our variables. We cannot use any keyword as an वेरिएबल नेम. सो आई हैव टेकन हियर टू वेरिएबल्स ए एंड बी, जिसकी वैल्यू मैंने 10 20 डाला. यहाँ पे मैंने पहला प्रिंट लिखा है ए एंड बी. तो आप जब इस आउटपुट विंडो से देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्रिंट में दिख रहा है 10 एंड 20 एंड देयर इज अ स्पेस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट में सेपरेटर क्या होता है? ब्लैंक स्पेस. अगर आप चाहो तो आप इसके वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकते हो. अगर मैं चाहूं कि पहले बी की वैल्यू दिखे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी कॉमा ए. आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि हमारा बी का वैल्यू फर्स्ट में आया है. देन वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 10. इफ यू वांट टू ऐड कि अपार्ट फ्रॉम वैल्यू के अलावा हमारे प्रोग्राम में एक मैसेज भी दिखे, एक लेबल भी दिखे, उसको भी आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू, तो आपके आउटपुट विंडो में यहाँ पे क्या दिख रहा है? a इक्वल टू. फिर आपने यहाँ पे लिख दिया b इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? b इक्वल टू. और उसके बाद आपने लिखा a इक्वल टू कॉमा a. तो इस जो डबल कोट्स में आपने लिखा, इट इज सिंपली लाइक अ मैसेज. ये सिर्फ एक मैसेज की तरह बिहेव कर रहा है. आपके स्क्रीन पे एज इट इज दिख रहा है. देन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ए, इस ए की वजह से ये वैल्यू ऑफ जो ए 10 यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है. सेम चीज किसके लिए हो रहा है? इस प्रिंट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा है. इफ यू वांट यू कैन कंबाइन. आप इस दो प्रिंट स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया, मैंने द वैल्यू ऑफ ए इज ए. तो यहाँ पे आपके आउटपुट विंडो पे दिख रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 10. उसके बाद मैंने लिख दिया बी इक्वल टू बी. तो यहाँ पे b एज अ मैसेज आ गया. उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल b, द वैल्यू ऑफ 20 इज बीइंग डिस्प्लेड. If you want, you can add the concept of new line character also /n. I want that value हमारा separate line में print हो. तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? print a equals to a. तो because of this a equals to a, आपके आउटपुट विंडो पे क्या दिख रहा है? a की वैल्यू 10. ये /n की वजह से जो आपका नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी b, वो आपका किस लाइन में आ गया? नेक्स्ट लाइन में. और यहाँ पे b की वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, b की वैल्यू क्या दिख रही है? 20 दिख रही है. आप चाहो तो a और b के बीच में यू कैन हैव अ बिग गैप ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड अ टैब गैप. सो यू कैन यूज /t also. This is an escape sequence in Python like /n. /n is a new line character. /t is used for spacing, that is for tab space, right? तो यहाँ पे मैंने a equals to a लिखा. यहाँ पे a की वैल्यू 10 दी गई. Because of this /t, there is a space between this a and b. You can see this space, and then this is the variable b.
एज अ मैसेज इट विल बी डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको एज अ मैसेज दिख रहा है, और इस स्मॉल बी की वजह से आपका यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं अपने प्रोग्राम में और हम उसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर दे रहे हैं। तो उस केस में देयर विल बी एन एरर इन आवर प्रोग्राम एंड दैट एरर इज नोन एज नेम एरर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किया, वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज नॉट असाइन टू इट। एक वेरिएबल तब तक नहीं बनता है जब तक कि आप उसमें कोई वैल्यू को असाइन नहीं किए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एक्स, तो अभी इस पूरे प्रोग्राम में ऊपर में आप देखोगे एक्स नाम का कोई वेरिएबल मैंने यूज नहीं किया, एक्स को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, इसलिए जब इस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं यू कैन सी दैट देयर इज एन एरर, दिस इज नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि एक्स को तो आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, और वेरिएबल तब तक डिफाइन नहीं होगा जब तक कि एक्स की कोई वैल्यू हम इसमें इनिशियलाइज नहीं करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन देयर इज एन एरर दैट इज कॉल्ड नेम एरर। आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट बना देती हूँ। अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, 20। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम एक्स है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 20। अब जब इस प्रोग्राम को आप वापस सेव करोगे और जब इस प्रोग्राम को फिर से आप रन करेंगे तो आपको वो एरर नहीं दिखेगा। इससे हमें ये पता चला कि हम किसी भी वेरिएबल को बिना वैल्यू असाइन किए वी कैन नॉट यूज इट, क्योंकि हमारा वेरिएबल वो डिफाइन ही नहीं हुआ, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे जब इस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि देयर इज नो एरर एट ऑल, और इसके पहले यहाँ पे एक एरर दिख रहा था, नेम एरर। सो इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कैसे हम लोग सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, कैसे उसके वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करेंगे, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेम एरर। किसी वेरिएबल को विदाउट डिफाइन किए वी कैन नॉट यूज इट इन आवर प्रोग्राम। सो